साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद सूही महला पंजवा। सूख महल जाके ऊंच द्वारे, ता मह वस है भगत प्यारे। सहज कथा प्रभ की अत मीठी, विरल काहू नेतर डिठी। रहाव तह गीत नाद अखारे संगा, ऊहा संत कर है हर रंगा। तह मरन न जीवन सोग न हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। गहज कथा एह गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बानी। गहज कथा एह गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। परम सन्मानयोग हाजरा हजूर जाहरा जहूर चवर छतर ताकत दे मालिक, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन और पवित्र हजूरी के अंदर सत्संगत रूप होकर के हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करियो जी। रल मिल के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो आप जी मेरी पीढ़ी के मालक हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्थानां से हर रोज अमृत वेले के दीवाना विच धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई बाणी के लड़ीवार शब्द की विचार सरवण करते हो। जिस पावन शब्द की विचार अज आप जी दे नाल सांझी करनी है,
ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 739 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਸੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਊਚ ਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੇਵਲ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ। ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਹਿਲ ਐਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਿਲ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਜੋ ਇਹ ਠਾਉਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ।
मालिक दा द्वारा बड़ा उच्चा है। जदों गुरु अर्जन देव महाराज इकल्ले महल की गल नहीं करते, ये भी दसते ने कि उस मालिक दे महल विच पहुंचदा कौन है। हर कोई उहदे मालिक दे महल विच पहुंच नहीं सकता। गुरमुखो जिहड़ा मालिक दे महल विच पहुंच गया ना, उन्होंने दुनिया दियां रेतां जिहड़ियां ना वो चंगियां नहीं लगदियां। ते मालिक दे द्वारे ते पहुंचिया होया मनुख दुनिया नूं चंगा नहीं लगदा। क्योंकि जदों मनुख उस मालिक की आग्या करिंदा फिर दुनिया नूं चंगा नहीं लगदा, वो दुनिया वालों नास्तिक हो जाता है, रब वल आस्तिक हो जाता है। ते दुनिया नूं वो मनुख चंगा लगदा है जिहड़ा दुनिया की आस लेके जिउंदा है, जिहड़ा कहे मैनूं दुनिया की लोड़ है। दुनिया दियां लोड़ां पिछे बंदा धर्म नूं छड्ड बैठदा है, धर्म छड्ड बैठदा, बंदा पैसे की खातर धर्म छड्ड बैठदा। इवें ना एक पंडित सी ते वो किसी राजे के कोल नौकरी करता सी। है पंडित सी पर राजे का वजीर सी। वजीर नहीं रखिया जाता जिहदे कोले ज्ञान बहुता होवे। पंडित ज्ञान ना होवे किवें हो सकता है। पंडित तां कहंदे विद्वान नूं है गुरु। एक दिन राजे ने कह दिता, कहन लगिया वजीर वो केड़ी दलदल है, वो केड़ा चिकड़ है जिहदे विच मनुख वड़ जाए ते निकलिया ना जाए, फिर निकल नहीं सकता। वो हुण वजीर सोचदा पंडित ब्राह्मण है, इहो जिहा किहड़ा चिक्कड़ हो सकता है बंदा वच वड़ जाए ते निकलिया ना जाए। राजा कहंदा मेरे सवाल का जवाब चाहिए, उत्तर चाहिए। 2-4 दिन दे दिते। उत्तर लेके आवी आउणा नहीं, मैं तेनों नौकरी तो कढ देना, मैं तेनों नौकरी ते नहीं रखना। हाँ जी नौकरी करनी है तो दस फिर केड़ा चिक्कड़ है जिहदे च बंदा वड़ जाए ते निकलिया ना जाए। वो घर बैठा है जाके सोचदा सोचा, ना दसिया ते नौकरी चली जानी है। सोचा च डुबे, सोचा सोचदा सोचदा अगले दिन सोचदा कहंदा घूम फिर के वेहणे किसी नूं पुछ लैने। ये अपने घर तो तुरिया किते दूर बाहर जंगलों च चलिया। राजे के सवाल का उत्तर लभदा फिरदा है, कदे किसी नूं पुछ लैंदा, कदे किसी नूं पुछ लैंदा, पर किसी ने इहनूं ये नहीं दसिया कि वो किहड़ा चिक्कड़ है जिहदे च बंदा वड़ जाए ते निकलिया ना जाए। जांदियां जांदियां जंगल च एक नूं भेडां चारन वाला आजड़ी बोलदे ने ना, वो आजड़ी मिल गई। वो पुछदा है जी
पंडित जी चेहरा तुहाडा कमलाया होया है, किसी मुसीबत विचों कहंदा नहीं। इहदे मन च इह सी कि वड्डियां वड्डियां नूं चंगियां चंगियां बंदियां नूं पुछ लिया, ये भेड़ां चारन वाला इहनूं अपना दुख दस के की लेना है, एवें मेरे दुख का मजाक उड़ाएगा। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ उस सवाल का उत्तर थोड़ी होना है, तो भेड़ां चारन वाला है। असीं भी एवें ही सोच लिए, माड़े बंदे कोले कित्थे गल करी दी, चंगिया चंगिया नूं पुछिया पर सवाल का उत्तर नहीं मिलिया, इहनूं क्यों दसना भेड़ां वाले नूं। उन्हें पुछिया, कहन लगिया, लगदे ब्राह्मण पर चेहरा कमलाया होया किसी मुसीबत विचों, दसो। इन 2-3 बार पूछया, आखिर इन्हें दस दिता। कहन लग्या कि मैं राजे के दरबार च वजीरी करदा, नौकरी करदा ते राजे ने कहा है जे नौकरी करनी है तो दस किहड़ा चिकड़ा जिहदे च बंदा वड़ जाए ते निकलिया ना जाए। बड़ा सियाणा सी भेड़ां चारन वाला आज। उन्हें इहनूं उदाहरण प्रैक्टिकल दे के समझाउण दा यतन करिया। उन्हें ना हेठों एक पत्थर चुक लिया, इनू पता ना लगन दिता, पत्थर चुक लिया। पत्थर चुक के छोटा जाते पंडित नूं कहन लग्या, जी देखो पंडित जी, तुसी राजे तो लेना की है, उन्होंने आपां दसना ही नहीं, सवाल का जवाब देना ही नहीं। पंडित कहन लग्या, ये जी हो सकता मैं नौकरी करदा है, मेरे बच्चियां दा की बनेगा, राजे ने मैनू नौकरी तो कढ़ देना है। वो भेड़ां चारन वाला कहंदा, तेरे बच्चियां दा हल भी हो जाएगा। पंडित कहंदा, किवें? मेरे कोले आ पत्थर पारस है, पारस है, इनू किसी तांबे ना ला दीए वो भी सोना बन जाता है, पित्तल ना लाइए वो भी सोना बन जाता, लोहे ना लाइए वो भी सोना बन जाता है। ये तू मेरे कोलों लै जा, ते तू नौकरी तो की लेना है, अमीर हो जाएगा इस पत्थर नाल, इस पारस नाल। पर पारस नहीं सी गुरु, है तो काम पत्थर सी। वो पंडित कहन लग्या, ठीक है, मन गया। कहन लग्या भी इदा नहीं ये पारस मिलना तेनू, मैं पारस तेनू तां देवांगा जे तू मेरी भेड़ दा दुध पीवे। होवे ब्राह्मण ते भेड़ दा दुध किवें पीवे? धर्म है उहदा, पंडित दा धर्म है कि वह भेड़ दा दुध नहीं पींदा। कहन लग्या भी ये नहीं हो सकता। वो कहन लग्या, फिर जा भाई किसी होर नूं पुछ, सवाल का जवाब इथों नहीं मिलना तेनू, मैं तो इन्ना ही कर सकदा, दुध पी ला भेड़ दा ते पत्थर लै जा, पारस लै जा, अमीर हो जाएगा, नौकरी तो की लेना, घर बैठी मौजा करी। वो ब्रह्म चलिया गया। थोड़ी वाट गया, राज सोचा सोचदा है, मना पत्थर लै लैंदा, दुध पी लैंदा, एक बार पीना सी, जाके पानी ना कुरलियां कर लैनियां, पर हुण नौकरी तो भी कढ़ देना, कोई गुजराण का हीला भी है नहीं किसी पासे। ये फिर मुड़ गया।
ये द्वारा जाके कहंदा जी देखो आजड़ी जी ठीक है, मैं आप जी की भेंट का दुध पीण नूं तैयार है, पर मैनू ये पारस दे दिओ। वो कहन लगे ये तां पहला आखिया सी, उदों मनना सी, हुण नहीं गल बनदी। ब्राह्मण कहंदा हुण, वो कहंदा हुण मैं कुत्ते की खोपरी लियाऊं सिर दी, ਉਹਦੇ ਚ ਭੇਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਦਿਉ, ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੇਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਚ ਥੋੜੀ ਪੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, किसी को पता लग गया अगला की आखेगा भी ब्राह्मण ने कुत्ते की खोपरी च सिर की खोपरी च दुध पी लिया, चले आ गया। रात जाके सोचता है, कहता यार एक बार ही दुध पीना सी कुत्ते के सिर की खोपरी च, फिर थोड़ी पीना सी, अमीर हो जाना सी, शाहूकार हो जाना सी। फिर मुड़ गया। जवारा आके फिर कहंदा जी मैनू मंजूर है। वो कहंदा तां दूजी बार सी, उदों खड़ जांदा, पर हुण नहीं गल बनदी। हुण तां तैनूं भेड़ दा मास भी नाल खाना पैना है। पंडित करे राम राम राम, ये तां नहीं खाधा जाना। गल मैं नेड़े मुकावां कि 6-7 वारी मुड़ के आया, 6-7 वारी। ते भेडां वाला उहनूं नवीं गल ही दस दिया करे भी इवें करना पैना। कई बार मुड़ के आया, नवीं गल ही सुनन नूं मिलिया करे। आखिरकार कहन लगे ना, जिवें तू कहना मैं उवें ही करन नूं तैयार है। मन च सोच लिया भी जिवें ये कहंदा कर लै, एक बारी पारस लै लै, फिर जाके नहा लांगे, शरीर नूं रेता ना माज लांगे, कुरलियां कर लांगे, पारस तां मिल जू ना। कहंदा जिवें तू कहना मैं उवें ही करन नूं तैयार है। ਉਹ ਭੇਡਾਂ वाला आजड़ी कहंदा पंडित जी कुछ समझियो। कहंदा समझ तां नहीं लगी, समझ तां मैनूं यही लगी भी मैनूं जो तू कहना वो करके पारस मिल जाना। उन्हें दस दिता। वो कहंदा पंडित जी ये पारस तां है नहीं, है तां एक पत्थर है, पर तू एक दल विच एक चिक्कड़ च फस गया। वेख तू सवेर दा इत्थे ही फसिया खड़ा है, एक लालच विच, मोह विच, माया दा लालच, माया दा मोह। तू इस चिक्कड़ च सवेर दा फसिया, उठ जाना फिर आ जाना, इदू गाह तुरे ही नहीं गया, इत्थे चिक्कड़ च फसिया नहीं तू। वो सोचदा किवें, कहंदा जी ते तुहाडे अंदर लालच आ गया, बच्चियां दा मोह आ गया, जिहदे करके तुसीं इत्थों पारस छड्ड के जाना नहीं चाहुंदे, धर्म भी छड्डना चाहुंदे आ। इस चिक्कड़ च फस के धर्म भी छड्डना चाहना भी है ब्राह्मण आ, मैं जो तू कहना मैं करन नूं तैयार हाँ। भावें तू शराब पियावें, तू मांस खवावें, जो तू करे मैं करन नूं तैयार। आखिया ना, वो कहन लगे आ पंडित जी बस यही एक चिक्कड़ है जिहदे च बंदा वड़ जाए ते निकलना औखा है। मोह दा चिक्कड़ ते लालच दा चिक्कड़। जाके राजे अपने नूं दस, तैनूं नौकरी ते रख लेगा। इदा गुरमुखो जिहड़ा लालच दा ते मोह दा चिक्कड़ है, इहदे चों निकलना औखा हुंदा है। ते एक आदड़ी तो ज्ञान लेके पंडित वजीर दी नौकरी वध गई। रहो विचार, आपां गल करदे सी कि परमात्मा दा महल बड़ा उच्चा है।
उत्थे सुख ही सुख, उत्थे आनंद ही आनंद है। पर उस आनंद नूं प्राप्त कौन करदा है? मालिक दे महल विच कौन पहुंचदा है? जिहड़ा मोह दे चिक्कड़ विच ना फसे, जिहड़ा लालच दे चिक्कड़ विच नहीं फसदा, वो हुंदा रब दा भगत। ਉਹਦੇ अंदर कोई हंकार नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ अंदर हौमे नहीं हुंदी। इस करके गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे सूख महल जाके ऊंच द्वारे, ता मह वास है भगत प्यारे। उत्थे रब नूं प्यार करन वाले धर्मी बंदे उस महल विच रहिंदे ने। देखण नूं संसार विच होवणगे, पर अंतर आत्मे उन्हां दी आत्मा परमात्मा दे महल विच पहुंची हुई होवेगी। उत्थे विकारां दी पहुंच नहीं, केवल उत्थे आनंद ते खुशियां ने। रब दे भगत बनना बड़ा औखा है, पहला धर्मी बनना पैंदा है। गुरु जिहड़ा बंदा छोटी जी गल्लों धर्म छड्ड देवे, असीं तां कई वार वोटां पैंदियां ने, उदों शराब दीयां बोतलां ते विक जाने, असीं कित्थे धर्मी। धार्मिक वो हुंदा है जिहड़ा कदे धर्म नहीं छड्डना, शरीर जांदा चलिया जाए, कोई गल नहीं। सहज कथा प्रभ की अत मीठी, जिहड़ा बंदा उस महल च पहुंचदा है, उहनूं आत्मक अडोलता वाली रब दी सिफत सलाह बड़ी मिठी लगदी है। सहज कथा भाव आत्मक अडोलता वाली, जिस कथा नूं, जिस सिफत सलाह नूं सुन के, जिस सिफत सलाह नूं करके मन टिक जांदा है। सहज कथा आत्मक अडोलता वाली रब दी सिफत सलाह, प्रभ की अत मीठी। वो परमात्मा की सिफत सलाह जिहड़ी है, वो उस मनुख नूं बड़ी चंगी लगदी है जिहड़ा परमात्मा दा प्यारा भगत होवे। दूजे नूं थोड़ी कथा चंगी लगदी है। सुनी ना जाई सच अमृत कथा, दूजे बंदे तो सदा रहन वाली जिहड़ी आत्मक जीवन देने वाली रब की सिफत सलाह की कथा है, वो नहीं सुनी जाती। सुनी ना जाई सच अमृत कथा रार करत, वो बंदा तो झगड़ा करदा, झूठी लग गाथा, वो तो झूठियां कहानियां पिछे लग के फिर झगड़ा करदा है। पर जिहड़ा रब नूं प्यार करदा, उहनूं रब की सिफत सलाह की कथा जिहड़ी है आत्मक अडोलता वाली, वो चंगी लगदी है, मिठी लगदी है। पर महाराज कहंदे विरलै काहू नेतर हों डिठी, पर किसी विरले मनुख ने उस अखी वेखिया परमात्मा नूं, बुद्धि रूप अख नाल किसी विरले मनुख ने वेखिया, किसी विरली आत्मा ने परमात्मा दे दर्शन कीते आ। विरलै काहू नेत्र हों डिठी, रहाओ दा विश्राम दे के महाराज कहंदे तह गीत नाद। फिर जो बंदा आत्मक अडोलता विच टिक जांदा है, रब दी सिफत सलाह करदा है, उदों फिर अंदर खुशियां दे गीत वजदे ने, नाद वजदे ने, अनहद धुना वजदियां। तह गीत नाद आखारी संगा, अखारे कहंदे आ जिवें पहलवानां दे घोड़न दा कोई पिड़ होवे, फिर मानो कि उत्थे पिड़ वध जांदे ने, जिथे काम आदिक पहलवानां नाल टाकरा करन दी जाच सिखी दी है। एक पासे आत्मा है, दूजे पासे काम क्रोध लोभ मोह हंकार है। आत्मा दा घोल हुंदा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नाल अंदर एक पिड़ वज जांदा है, अखाड़ा बन जाता अंदर। फिर उदों फिर जिहड़ा सच नाल जुड़ी आत्मा है, ओदी जित हुंदी है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार हार जांदे ने सच दे अगे। तह गीत नाद अखारे संगा, ऊहा संत करहे हर रंगा। संत जिहड़ा रब नाल जुड़े,
उस सिफत सलाह विच जुड़ के संत जन परमात्मा दे मिलाप का आनंद माणदे। ऊहा संत करहे हर रंगा, परमात्मा दे प्रेम विच टिक जांदे ने। रब नूं प्यार करन वाले महापुरख तह मरण ना जीवन, उत्थे फिर टिक के आत्मक अडोलता च टिक के जम्मण मरण का गेड़ खत्म हो जाता है। तह मरण ना जीवन, सोग ना हरखा, उत्थे फिर हरख सोग की कोई गल नहीं रह जाती। ना हरख ना सोग, भाव ना खुशी ना गमी। रब दा भगत हुंदा ही वो है जिहड़ा सोने नूं भी मिट्टी कहंदा होवे ते मिट्टी नूं सोना कहंदा होवे, जिहड़ा हर सोग तो वखरा ही होवे। पर वखरा होना बड़ा औखा है। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ करे ਤਾਂ कोई नहीं, अपमान करे ਤਾਂ कोई नहीं, एक बराबर है। नौवें पातशाह ने आख्या ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख नूं दुख ही नहीं मनदा। सुख स्नेह अर भै नहीं जाकर, किसी तो डरदा नहीं, उस सुखा नाल मोह नहीं करदा। सुख स्नेह, स्नेह कहंदे मोह, सुखा नाल मोह है नहीं, अर भै नहीं, किसी दा डर नहीं। कंचन माटी मन, सोने नूं मिट्टी मनदा, न निंदिया न उस्तत जाट। उसकी कोई निंदिया करे तां कोई नहीं, उस्तत करे तां कोई नहीं। लोभ मोह अपमाना, ना लोभ है ना मोह है ना हंकार है। हरख सोग ते रहे न्यारो, ना खुशी ते गमी दा कोई उन्होंने लेप लग्या होया। दोनों तो निर्लेप रहिंदा है। दुख समय ताहा मार रोंदा नहीं, खुशी समय भंगड़े नहीं पाउंदा, गीत नहीं गाउंदा। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ करे ਤਾਂ कोई नहीं, अपमान करे ਤਾਂ कोई नहीं। ਉਹ ਤਾਂ परमात्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। काम क्रोध जय परसै नाहन तह घट ब्रह्म निवासा, ना ਉਹਦੇ अंदर काम क्रोध लोभ मोह हंकार ਉਹਦੇ ਤੇ असर ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤਹ ਘਟ ब्रह्म निवासा, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਹ ਮਰਨ ਨਾ ਜੀਵਨ, सोग न हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। सदा रहने वाले परमात्मा का नाम जिहड़ा आत्मिक जीवन देने वाला है, उसदी अंदर वर्खा हुंदी रहिंदी है। अंदर नाम चलदा रहिंदा है, रब दी याद वसी रहिंदी है। गहज कथा ये गुर ते जानी, रब दी सिफत सलाह जिहड़ी गहज कथा लुकी हुई है, समझ नहीं है। पर जो गुरु की संगत करिए, रब की सिफत सलाह किवें करनी है, ये गुरु कोलों सीखी जाती है। गहज कथा, रब की सिफत सलाह गहज है, लुकी हुई है, प्रगट नहीं है। सानू समझ नहीं कि रब नूं किवें सलाउणा है। पर यह गुर ते जानी, जो गुरु कोलों सिक्ख्या लवांगे, गुरु कोलों ये समझ पेगी कि रब की सिफत किवें करनी है। अगे नानक बोले हर हर बाणी, ताइए तां गुरु अर्जन देव महाराज पंजवें नानक परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी उचारते रहंदे ने। इस करके हर एक मनुख नूं, हर एक शरीर नूं, हर एक प्राणी नूं महाराज उपदेश बख्शदे ने कि हर एक जीव उस परमात्मा की सिफत सलाह करे, रब के गुण गावे, रब दियां वडियाइयां गावे। बंदा रब के गुण गावे, दुनिया के लोग उस बंदे के गुण गाउंदे ने। रब के गुण गावांगे, उस रब के महल विच पहुंच जावांगे, मालिक के चरणों च लीन होवांगे। जिथे केवल सुख है, आनंद है, वो एडा उच्चा द्वारा है जिथे असीं उस चौथी अवस्था च, सहज अवस्था च पहुंचांगे।
ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੜ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣੀਏ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਖਹਿ ਮੇਲੇ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ